तो डॉक्टर साहब को पिन करो। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन मुझे अपना कैमरा तो ऑन रखना है ना? हाँ, आपका कैमरा ऑन रहेगा। ओके।
So we will start at 5:35. Okay. So we have 2 more minutes. So let's wait for some other people to join. Dr. Vipin, my presentation Yes. is visible or no? Yes, absolutely visible. So we can start now, Doctor. So good evening, everyone. So I am Dr. Vipin Singh, Product Manager in Marketing Team in Genex Animal Health. So on the behalf of the Genex Animal Health, I warmly welcome to all the participants for the today webinar. So as a Genex, we have a very strong presence in the market since last 6 decades with different names, and we have different business verticals. We have herbals, we have therapeutics products. So we have very strong legacy and history in the veterinary fields. So, but as a Genex, we also have a strong belief to support our field veterinarians by providing them science-driven products, science-driven solutions, and also the knowledge sharing to our field veterinarians. So in continuation of the knowledge sharing, this is our third webinar. So it is my privilege to welcome and introduce Dr. Alok as today's guest speaker. So I would like to give a brief introduction of Dr. Alok. So Dr. Alok is a assistant professor in the Veterinary College, Kumarganj, Ayodhya, Uttar Pradesh. And he also worked as a faculty member in Ranchi Veterinary College, Jharkhand, previous this. And Dr. Alok did his graduation and post-graduation in veterinary medicine from Mathura Veterinary University, Uttar Pradesh. And he did his PhD in veterinary medicine from Pantnagar Veterinary College. Dr. Alok has the more than hundreds research and clinical article publications in different magazines. So we can say Dr. Alok has a very vast experience of the academics as well as clinical knowledge. So definitely we are going to privilege of his knowledge in today's webinar. The topic is the milk fever and metabolic disorders in dairy cattle, a practical approach. So I would like to invite Dr. Alok. Over to you, Dr. Alok. Please continue. Thank you. Okay, thank you, Dr. Vipin, for nice introduction. So good evening to all and namaskar to all the participants. So today I am just going to share my views regarding the topic which was assigned to me, that is milk fever and metabolic disorders in dairy cattle, a practical approach. So first of all, a question arises in our mind that what is metabolic disorders? So we can say that basically these are non-infectious disease which primarily occurs due to the imbalance in the rate of input of dietary nutrients and the output of production. That's why the metabolic disorders are also known as previously also known as production disease. And these metabolic disorders mainly encounter among the high producing dairy cows during the transition period. So after knowing the metabolic disorder, next is
what are the key factors which are responsible for the precipitation or for the occurrence of the metabolic disorders. So basically there are three factors, main factors. The first one is transition period stress, second one is dietary shift, and third one is negative energy balance. So these three factors either work together or independently may cause to the precipitation or occurrence of the metabolic disease in a particular milking animal. So, Dr. Alok sir, a simple request: if you use the bilingual Hindi as well as English, that would be better. okay. So after that, जो महत्वपूर्ण चीज अब इसके बाद आ रही है, दैट इज ट्रांजिशन पीरियड. जब भी हम पूरा ये मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में बात करेंगे या ट्रांजिशन डिजीज के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन डिजीज के बारे में, तो उसमें एक महत्वपूर्ण फेज आता है ट्रांजिशन पीरियड का. ये ट्रांजिशन पीरियड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज होता है. ये एक टाइम पीरियड होता है 21 डेज, 21 दिन पहले पार्चुरेशन से पहले और 21 दिन बाद पार्चुरेशन के बाद का जो समय पीरियड होता है, दैट इज ट्रांजिशन पीरियड. और ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर होते हैं और ये ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे लाइक मेटाबॉलिक. ये एक इन्फोग्राफिक्स है जिसके माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ट्रांजिशन पीरियड का क्या इंपॉर्टेंस और क्या क्या उस समय होता है उस पर्टिकुलर जानवर के अंदर, मिल्किंग एनिमल के अंदर. लाइक मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो गया, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गई, इम्यून सप्रेशन हो गया और डाइजेस्टिव अपसेट्स हो गया. सो ये दीज जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आइदर सिंगल और इन कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर होते हैं और उसकी वजह से फिर मेटाबॉलिक डिजीजेस का क्लिनिकल साइन उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर उत्पन्न होता है. नेक्स्ट वन, आफ्टर ट्रांजिशन पीरियड जानने के बाद जो नया अगला चीज आता है वो होता है कि मेजर मेटाबॉलिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं. जो हमारे मिल्च एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन सी मेजर मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं इनकाउंटर होती हैं. उसमें फर्स्ट वन इज मिल्क फीवर, डाउनर्स काउ, हाइपोमैग्नीसीमिया जिसको ग्रास टिटैनी भी बोलते हैं, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, कीटोसिस जिसको एस्टोनीमिया भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया. ये जो मेनली प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है ये मेनली भेड़ों और बकरियों में पाई जाती है, और सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस. सो मेजर मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हमने यहाँ 6-7 लिस्ट किए हैं वो होती हैं. हालांकि जब हम वेरियस लिटरेचर्स और वेरियस पेपर्स को स्टडी करते हैं या उनके अंदर जाते हैं तो हमें कुछ जगह कुछ और बीमारियां हैं, जैसे लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमैशम और मेस्टाइटिस, इनको भी मेटाबॉलिक डिजीजेस कहीं कहीं पर माना गया. लेकिन मेजर मेटाबॉलिक डिजीजेस मिल्क फीवर, डाउनर्स काउ, हाइपोमैग्नीसीमिया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, कीटोसिस, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया और सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस को माना गया है. इसके बाद इस टेबल के माध्यम से बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी ट्राइंग टू टेल यू दैट जो मेजर मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं उसके क्या प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट्स हैं, उनका होने का क्या क्या समय है और क्या कौन से की रिस्क फैक्टर उससे एसोसिएटेड हैं. तो मिल्क फीवर के बारे में तो आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. उसके अलावा एक कीटोसिस होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है जो निगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है जब बॉडी में कम हो जाता है तब ये कीटोसिस नामक समस्या उत्पन्न होती है. और जो इसका टाइम ऑफ अकरेंस है ये कब होती है, ये नॉर्मली जो प्रेग्नेंट जानवर है काविंग के उसके 2 से 4 सप्ताह के बाद नॉर्मली हो जाती है. तीसरी बीमारी है हाइपोमैग्नीसीमिया जिसको ग्रास टिटैनी के नाम से भी जानते हैं. ये जैसे कि नाम ही से सजेस्टिव है, यानी कि हाइपोमैग्नीसीमिया यानी कि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है ब्लड में. और इसका जो टाइम ऑफ अकरेंस है वो अर्ली लैक्टेशन या स्प्रिंग के समय जो ग्रेजिंग की जाती है उसकी वजह से मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर मिल्किंग एनिमल के अंदर कम हो जाता है और जिसकी वजह से ये हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाती है. फोर्थ वन इज पीपीएच, दैट इज पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया. ये जो समस्या है, जो मेटाबॉलिक डिजीज है, ये जब उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर फास्फोरस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तब ये बीमारी उत्पन्न होती है. और इसका भी जो टाइम ऑफ अकरेंस है वो 2 से 4 सप्ताह काविंग के बाद का है.
इसके अलावा इसके साथ ही साथ डाउनर काउ सिंड्रोम होता है। ये इसका टाइम ऑफ अकरेंस एनी टाइम है, यूजुअली पोस्ट काविंग के समय कभी भी हो सकती है। और इसका जो प्राइमरी काजेटिव एजेंट है वो देयर इज इस्चेमिक मसल और नर्व की डैमेज हो जाता है। इसके बाद प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया। ये बीमारी मुख्यतः भेड़ और बकरियों की होती है, और ये बीमारी भी जो मुख्यतः होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की कमी जब हो जाती है शरीर के अंदर, पर्टिकुलर वो भेड़ और बकरी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, तब ये बीमारी होती है। और इसका जो की रिस्क फैक्टर है दैट इज इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन व्हाइल कैरिंग मल्टीपल और लार्ज फीटसेस। सो ये मेजर मेटाबॉलिक डिजीजेस के बारे में एक नक्शा that is milk fever. So milk fever, जिसका दूसरा नाम इसको हम जानते हैं पार्चुरेंट पेरेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिल्क फीवर? ये एक बीमारी होती है कैटल, शीप और गोट्स की, जो होती है अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काविंग और किडिंग। और इसका जो प्रमुख कारण है, क्या वजह होती है इस बीमारी होने का, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, रिकम्बेंसी एंड अल्टीमेटली शॉक एंड डेथ। मिल्क फीवर जानने के बाद एक प्रश्न मन में अक्सर उठता है कि आखिर ये किन किन जानवरों में इसका अकरेंस ज्यादा होता है और किस समय इसका अकरेंस ज्यादा होता है। तो ये मिल्क फीवर की जो समस्या होती है, ये मुख्यतः हाई प्रोड्यूसिंग जो कैटल होते हैं, जिनसे हम अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करते हैं, उन कैटलों में ये फ्रिक्वेंटली पाया जाता है। जहां तक इसके उम्र की बात के बारे में अगर बात करेंगे, तो किस उम्र में इसके अधिक होने की संभावना होती है, तो जो हाई लैक्टेटिंग कैटल 5 से 10 साल के उम्र की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, उसमें ये बीमारी अधिकता से पाई जाती है। 5 से 10 साल की एज ग्रुप और 3rd to 7th पार्चुरेशन स्टेज के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका कारण ये है, इसका सीधा सा कारण ये है, क्योंकि जो मैच्योर डेयरी काउज होते हैं, या सिंपल जो डेयरी काउज हुआ, उसमें जो कैल्शियम की होम्योस्टेसिस होती है, उसमें कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन बोन्स के माध्यम से होता है, तो वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स में। तो जैसे जैसे जानवर की एज बढ़ती जाती है, तो वो रिसेप्टर्स की संख्या कम होती जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की अवेलेबिलिटी, कैल्शियम पूल में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारे गाय हाई लैक्टेटिंग है, 5 से 10 साल की एज ग्रुप में फॉल करती है, उनमें अधिक संभावना होती है। क्यों? क्योंकि उनमें रिसेप्टर्स की संख्या कम होती जाती है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी ब्रीड्स, कौन कौन सी नस्ल और क्या क्या वो टाइम होता है इस बीमारी के अक्रेंस का होने का। तो हम भारतीय परिवेश के संबंध में अगर बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो हाई लैक्टेटिंग में जैसे HF हो गई, जर्सी हो गई, इनमें से अगर देखा जाए तो जर्सी गाय सबसे ज्यादा प्रोन होती है जिसमें ये मिल्क फीवर की बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई लैक्टेटिंग, हाई यील्डर्स हैं जर्सी काउज, इसलिए इसमें इसकी संभावना अधिक मात्रा में बनी रहती है। अच्छा, समय के बारे में अगर बात करेंगे, तो ये बीमारी ब्याने के समय या ब्याने के 48 घंटे के अंदर ज्यादा इसके संभावना होते हैं इसके होने के। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स फील्ड्स में हमने कुछ ऐसे केसेस क्लिनिक्स में भी इनकाउंटर किए हैं, देखे हैं, जिसमें 7 से 8 दिन तक, अप टू कुछ लिटरेचर्स ये भी कहते हैं कि 10 दिन तक पोस्टमार्टम, ब्याने के 10 दिन तक बाद तक भी एक संभावना बनी रहती है कि उसमें उस पर्टिकुलर जानवर में मिल्क फीवर हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली और जो ज्यादातर पाया जाता है वो ब्याने के 48 घंटे के अंतर्गत ज्यादा इसकी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है एक मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्या प्रमुख कारण है इस मिल्क फीवर होने का। जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि जो ये मिल्क फीवर होता है, उसका जो मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है डिप्रेशन इन द लेवल्स ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम इन द टिश्यू फ्लूइड। बेसिकली जो हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो पूल है, वो अप्रोक्सीमेटली या मोटा मोटा कहा जाए कि 2 भाग में बटा होता है। एक आयनाइज्ड कैल्शियम होता है और एक बाउंडेड कैल्शियम होता है। सो बाउंडेड फॉर्म में जो कैल्शियम होता है दैट इज इनएक्टिव कैल्शियम,
वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, जबकि आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है ये फ्रिक्वेंटली मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इंपल्स में, ब्लड क्लॉटिंग में, हर जगह काम इसका ये अपना रोल प्ले करता है। तो जब शरीर में आयोनाइज्ड कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तब हाइपोकैल्सेमिक के जो लक्षण है, हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर के बॉडी में आ जाते हैं। नॉर्मली जो ये आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो अप टू 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। उससे नीचे होने पर ये इसकी वैल्यू कम हो जाती है और हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम पर्टिकुलर एनिमल में आ जाता है। नेक्स्ट, सपोज करते हैं कि अक्सर हम फील्ड में अक्सर जो हमारी क्लिनिक्स में हम ऐसे केस आते हैं कि वहां पर जो किसान होता है, जो पशुपालक होता है, वो इस चीज से अवेयर नहीं होता। उसे लगता है कि अरे वो आता है कहेगा अरे डॉक्टर साहब हमारा जानवर एकदम स्वस्थ है, दूध दे रहा है, देखिए एकदम बीमार हो गया। लेकिन उसको, उस पशुपालक को वहां पर इस चीज का अनुभव नहीं होता कि अगर उसका जानवर हाई मिल्क यील्डर है तो कितना कैल्शियम का ड्रेन हो रहा है, उसको इस चीज का अनुभव नहीं होता है। और चूंकि उस चीज की उसे जानकारी नहीं होती, उस चीज से वो उसे अनुभव नहीं होता, तो उसी अनुरूप वो अपने जानवर की देखभाल नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से फिर उसके अंदर मिल्क फीवर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सपोज यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताया गया है कि सपोज एक हमारे पास एडल्ट कैटल है और वो 10 किलोग्राम पार्चुरेशन के बाद वो 10 किलोग्राम मिल्क और कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस करता है। तो वो जब 10 किलोग्राम कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस करेगा तो उससे कुल मिलाकर 23 ग्राम कैल्शियम का ड्रेन होता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1 ग्राम कोलेस्ट्रम कोई जानवर प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब वो 2.3 ग्राम कैल्शियम लॉस कर रहा है। तो अगर हमारा एडल्ट कैटल 10 किलोग्राम कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब वो 23 ग्राम कैल्शियम लॉस कर रहा है, और ये अमाउंट लगभग 9 गुना ज्यादा होती है हमारे इंटायर प्लाज्मा पूल से। तो एकाएक एक बार दुहने से 10 किलो कोलेस्ट्रम से 23 ग्राम कैल्शियम की मात्रा बाहर जा रही है, जो लगभग 9 गुना है। तो जब बॉडी से इतना अधिक कैल्शियम चला जाएगा तो फ्रिक्वेंटली बॉडी कैल्शियम पूल में बॉडी के कैल्शियम पूल में उस कैल्शियम की मात्रा को पूरा नहीं प्राप्त कर पाती, इसीलिए पूरा नहीं कर पाती, और इसीलिए फिर मिल्क फीवर की समस्या आ जाती है। जबकि उसके कंट्रास्ट ड्राई पीरियड है। जब ड्राई पीरियड में हमारा जानवर है तब हमें रेगुलर हार्डली 10 से 12 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो आप अंतर देख सकते हैं कि जब हमारा जानवर ड्राई पीरियड में तो उसे 10 से 12 ग्राम पर डे कैल्शियम की जरूरत होती है, और जबकि लैक्टेशन फेज में आता है यानी दूध देने लगता है तो वहां पर वो कम से कम 30 ग्राम कैल्शियम मोबिलाइज कर देता। तो कितना डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से ही शरीर का प्लाज्मा पूल, कैल्शियम प्लाज्मा पूल फिलअप नहीं हो पाता, और उसकी वजह से मिल्क फीवर जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नाउ कैल्शियम होम्योस्टैसिस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कैल्शियम मिल्क फीवर में, और इसको हम आगे पैथोजेनेसिस के सेक्शन में आगे डिटेल से इसको देखेंगे। नाउ एक अदर कंडीशन आती है जो क्लिनिक्स में इस समय हम लोग इनकाउंटर करते हैं या फ्रिक्वेंटली देखा जाता है, दैट इज हाइपोकैल्सेमिक सिंड्रोम्स। ये समस्या रूमिनेंट्स में हमें जैसे ये गाय भैंसों में देखने को मिल जाती है, बट अदर देन रिलेटेड टू पार्चुरेशन। उस समय वो जानवर पार्चुरेट नहीं किया होगा, लेकिन उसमें हाइपोकैल्सेमिक सिंड्रोम आ गया होता। तो यही पर क्या होता है कि जनरली फील्ड में मिसडायग्नोसिस हो जाती है, और मिसडायग्नोसिस होने की वजह से सोचते हैं कि ये होता वो हाइपोकैल्सेमिक सिंड्रोम है, लेकिन ऐसा समझ लिया जाता है कि अरे इसको तो मिल्क फीवर की समस्या हो गई, और उसको हम जबरदस्ती या बाई फॉल्ट हम उसको कैल्शियम इन्फ्यूजन कर देते हैं। कैल्शियम इन्फ्यूजन कर देने पर क्या होता है कि अगर एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम इन्फ्यूज कर दे रहे हैं, या बॉडी को जितनी नीड नहीं उससे ज्यादा कैल्शियम जाएगा, तो कार्डियो टॉक्सिजेनिक इफेक्ट दिखाता है, हार्ट में इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से एनिमल की डेथ भी हो जाती है। तो हमें हाइपोकैल्सीमिक सिंड्रोम को बहुत जरूरी है कि हम डायग्नोसिस के समय इस चीज को क्लियरली डिफरेंशियली डायग्नोज कर सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी बीमारी हो गई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम सर्टेन अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जैसे नियोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन है। जब इन्हें हम आईवी देते हैं तो इनके आईवी देने की वजह से जब जिस जानवर को लगाया गया तो उसमें आयोनाइज सीरम कैल्शियम लेवल कम हो गया। तो हम जैसे पहले ही कहें कि अगर आयोनाइज सीरम कैल्शियम लेवल कम हो गया तो उसमें मिल्क फीवर जैसे लाइक सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि वो मिल्क फीवर नहीं होता, लेकिन उस समय ट्रांजिएंट, क्योंकि
जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स का इन्फ्यूजन किया गया है, इसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल कम हो गया, तो वो उसमें मिल्क फीवर लाइक करेक्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह भेड़ों में एक फेशियल एक्जिमा नामक बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड वहां पर हम लगभग 40 से 120 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। तो जब जिंक ऑक्साइड हम पर्टिकुलर उस भेड़ को देंगे तो उसके 24 घंटे के अंदर उसमें जो आयनाइज सीरम कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा तो उसमें मिल्क फीवर जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे। सो ये दो कंडीशंस हैं, ये हाइपोकैल्सेमिक सिंड्रोम्स हैं, और इसको डिफरेंशियली डायग्नोज करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई ऐसा केस आए तो हमें पर्टिकुलर पूरी हिस्ट्री लेना चाहिए कि फर्दर कोई वो जानवर पहले से बीमार तो नहीं था, अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो कौन कौन। सो इससे हम सक्सेस या ट्रू हाइपोकैल्सीमिया है। नाउ देयर आर वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो क्लिनिकल भी हो सकते हैं, वो सब क्लिनिकल फॉर्म में हो सकते हैं। क्लिनिकल में लाइक मिल्क फीवर हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएगा, र्यूमिनल एटोनी हो जाएगी। जहां तक सब क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे तो डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा, एबोमेसम डिस्प्लेसमेंट, मेट्राइटिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कनेक्टिंग टॉपिक है, दैट इज रिस्क फैक्टर्स। कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मिल्क फीवर जानवर में, ये हाई एल्डिंग जानवर में होता है। तो बेसिकली रिस्क फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक एनिमल से एसोसिएटेड है और एक डायटरी रिस्क फैक्टर है। तो पहले हम डायटरी रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अब इसमें भी एक नॉर्मली कंडीशंस आती है फील्ड्स में, जनरली क्लिनिक्स में भी आते हैं, ढेर ऐसे पशुपालक आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई उनका जानवर इस समय प्रेगनेंसी में चल रहा है, तो वो क्या दें कि ताकि उसका प्रेगनेंसी पीरियड में उसका अच्छा फीटस का अच्छा डेवलपमेंट हो और उसको अच्छा ब्याने के बाद दूध भी प्राप्त हो। एक मिसकंसेप्शन भी फील्ड में बहुत ज्यादा है। वो मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हमारा जानवर उस प्रेगनेंसी में है तो उसे हम ढेर सारा कैल्शियम पहले से दें, ताकि जब वो पार्चुरेट हो जाएगा तो हमें ढेर सारा दूध मिलेगा और कैल्शियम की दिक्कत नहीं होगी, जो कि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। होता क्या है कि अगर हम 100 ग्राम से डेली कैल्शियम ज्यादा दे रहे हैं ड्राई पीरियड में, तो ये इंसिडेंस ऑफ मिल्क फीवर को बढ़ा देता है। अगर 100 ग्राम ड्राई पीरियड में हम कैल्शियम रेगुलर किसी पर्टिकुलर एनिमल को दे रहे हैं तो ये वो इंसिडेंस के रेट को बढ़ा देगा मिल्क फीवर। क्यों? क्योंकि हम अगर बॉडी को ऑलरेडी बाहर से 100 ग्राम से ज्यादा बाहर कैल्शियम दे रहे हैं तो बॉडी की नीड इस बाहर दीजिए कैल्शियम से पूरी हो जा रही है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कैल्शियम का, जो पार्चुरेशन या लैक्टेशन फेज में आने के बाद जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैल्शियम का होगा वो दबा रह जाएगा बॉडी के अंदर, और जब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बॉडी हाइपोकैल्सीमिया में चली जाएगी। दूसरा है कैल्शियम के अलावा क्या होता है कि फास्फोरस, अगर हम अधिक मात्रा में फास्फोरस भी प्री पार्टम डाइट में अपने ये प्रेग्नेंट एनिमल को देंगे तो इसकी वजह से भी मिल्क फीवर होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये अधिक मात्रा का जो फास्फोरस है ये किडनी में जाकर उस एंजाइम पर इफेक्ट डालता है जो एक्टिव विटामिन D3 के फॉर्मेशन में काम करता है। तो जब वो एंजाइम वहां प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो एक्टिव फॉर्म का विटामिन D3 नहीं बनेगा, और जब एक्टिव फॉर्म का विटामिन D3 नहीं बनेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और रिजॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा, और जिसकी वजह से मिल्क फीवर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज DCAD, दैट इज डायटरी कैटायन एनायन डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका प्ले इंसिडेंस में भी है और इसका प्ले कंट्रोल में भी है। अगर पेरी पार्चुरेंट पीरियड में या प्रेगनेंसी के दौरान हम जो जानवर अपना जो कैटल है या जो पशु है उसको ऐसा चारा दे रहे हैं या ऐसी घास या फॉरेज दे रहे हैं जिसमें अधिक मात्रा में सोडियम कैटायंस होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, तो ये जब अधिक मात्रा के जो कैटायन युक्त जो फॉडर है या फॉरेज है जब ये जाता है तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जो शरीर के अंदर क्षारीपन उत्पन्न कर देता है, और जो शरीर के अंदर ये क्षारीपन उत्पन्न होता है इसकी वजह से कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और मिल्क फीवर उत्पन्न होने का चांस हो जाएगा।
बचाव में क्या है, बचाव में अगर इसलिए हम जो ऐसा घास या ऐसा चारा उसको दें जिसमें, या ऐसे साल्ट एनिमल को, जो प्रेग्नेंट एनिमल को दें जिसमें एनायन हो, जैसे क्लोराइड आयन हो गया, सल्फर आयन हो गया, ये ऋणात्मक आयन होते हैं, ये एनायंस होते हैं। इनको देने से क्या होता है कि माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अम्लीयता आती है, और ये अम्लीयता की वजह से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होता है और हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर से हम बच सकते हैं। नाउ इसके बाद रिस्क फैक्टर जानने के बाद अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस में। तो मिल्क फीवर की जो पैथोजेनेसिस है, बेसिकली अगर मोटा इसको देखा जाए, मोटा मोटा, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता। एक जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, इंटेंस लैक्टेशन, बहुत अत्यधिक मात्रा में लैक्टेशन होने लगा तो जाहिर सी बात है अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर के बाहर जाने लगेगा और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी। ये बात हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है एक हार्मोनल रिस्पॉन्स लैग होता है। जैसे ही शरीर के अंदर कैल्शियम आयन का कमी होगा तो क्या होगा कि पीटीएच हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा। पीटीएच हार्मोन दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, और ये पीटीएच हार्मोन एक्टिवेट होकर किडनी में क्या करता है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 प्रोड्यूस करता है, जिसको हम 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये जो एक्टिव फॉर्म का विटामिन D3 होता है, यही जाकर इंटेस्टाइन में और जो स्केलेटल सिस्टम में जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, बोनी ढांचा है शरीर में, वहां पर कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। लेकिन ये प्रक्रिया होने के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे का समय चाहिए। जबकि हमारा एनिमल रोज दूध दे रहा है, और अगर सपोज करिए 10 लीटर दूध दे रहा, तो मतलब रोज 23 ग्राम कैल्शियम बाहर शरीर के जा रहा है, यानी एकदम सीवियर जो शरीर का कैल्शियम पूल है उससे बहुत तेजी से कैल्शियम घट रहा है। लेकिन रिकवरी के लिए यहाँ पर 24 से 48 घंटे का समय लग रहा है। इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर प्रोड्यूस हो जाता है, इस गैप की वजह से। थर्ड वन, डाइटरी एग्रेवेशन, जैसे कि मैंने DCAD में चर्चा की कि एल्केलोसिस की अगर कंडीशन हो जाएगी तो प्रॉपर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल गट में और बोन से रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। फोर्थ वन होता है न्यूरोमस्कुलर ब्रेकडाउन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे पास प्रॉपर कैल्शियम का कंसंट्रेशन है तो ये रिलीज करता है एस्टाइल कोलिन को, और ये नर्वस का या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में काम करता है। ये ट्रांसमीटर का, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यही जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ये न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर फेल्योर हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, मसल की वीकनेस हो जाती है, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं एनिमल की, उसमें पैरालिसिस हो जाती है। सो ये 4 बेसिक फंडामेंटल, हम उसको 4 बेसिक हेड्स में इसकी पैथोजेनेसिस को बांट सकते हैं। एक, इंटेंस लैक्टेशन, यानी अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर जा रहा है। दूसरा, हार्मोनल लैग, हार्मोन का एक्शन होता है लेकिन 24 से 48 घंटे का समय लगता है, उसकी वजह से। तीसरा, हम ऐसा उसको खाना दे रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर क्षारीयता उसके अंदर आ जा रही है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, उसकी वजह से नहीं हो पाता। और चौथा है ये न्यूरोमस्कुलर ब्रेकडाउन की वजह से। नाउ यहाँ पर हम पिक्टोरियल डिपिक्टेशन किए हैं पैथोजेनेसिस के बारे में, जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब आता है एक महत्वपूर्ण पड़ाव, दैट इज क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं? तो जो मिल्क फीवर की समस्या होती है उसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग होती है वो मुख्यतः 3 स्टेज में होती है। एक स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 होती है। ये है स्टेज 3। स्टेज 1 क्या होता है? जो मिल्क फीवर शुरू तुरंत होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे से कम के समय के दौरान जो आता है, उसको हम उस कैटेगरी को स्टेज 1 में रखते हैं। 1 घंटे से 12 घंटे की अवस्था हो गई है, उस दौरान का जो मिल्क फीवर है उसको हम स्टेज 2 की अवस्था में रखते हैं। और स्टेज 3 अवस्था 12 घंटे के आगे का। तो जो स्टेज 1 के क्लिनिकल साइंस होते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि जानवर हमें नॉर्मल सा दिखता है, जानवर सामान्यतः खड़ा रहता है,
उसमें उसकी भूख चली गई होती है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग नॉर्मल होता है या नॉर्मल से थोड़ा बहुत बढ़ा होता है। और अगर उसको आप आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में रिलैक्टेंस शो करता है, एनिमल चलने का भी नहीं होता है और उसमें वीकनेस महसूस होती है और वो अपना वेट शिफ्ट करता रहता है। जबकि जो दूसरे स्टेज की जो क्लिनिकल साइंस है, दूसरे स्टेज में क्या होता है कि जो जानवर है वो अपने स्टर्नम जो बोन होती है स्टर्नल रिकम्बेंसी में चला जाता है, स्टर्नल रिकम्बेंसी में चला जाता है और यहाँ पर जो उसका रेक्टल टेम्परेचर है वो सब नॉर्मल हो जाता है, यानी जितना टेम्परेचर होता है उससे कम हो जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम हो जाता है। दूसरा इसमें एक पिक्यूलियर साइन होता है, वो अपनी गर्दन को एस शेप कर लेता है या गर्दन मोड़ लेता है और पीछे मोड़कर अपना फ्लैंक को देखता रहता है, फ्लैंक को देखता रहता है। इसमें उसका जो मसल्स होता है, जो गीलापन मसल्स में होता है वो ड्राई हो जाता है, कान उसके ठंडे हो जाते हैं और जो अगर हम एस्कल्टेशन करेंगे उसका हार्ट का तो उसमें हमें उसका जो हार्ट बीट है उसकी इंटेंसिटी बहुत लो हो जाएगी, रेट तो बढ़ जाएगा लेकिन जो इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी। फिर आता है थर्ड स्टेज, जो लास्ट स्टेज होता है, दैट इज स्टेज ऑफ लैटरल रिकम्बेंसी। इसमें सेकेंड स्टेज में हमारा जानवर अपने एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में रहा, अब थर्ड स्टेज में जो जानवर हो जाता है वो लैटरल रिकम्बेंसी में चला जाता है और वो कॉन्सियसनेस को खो देता है। हार्ट रेट बहुत ही रैपिड हो जाती है, लेकिन पल्स अगर हम सोचें कि इस ऐसे थर्ड स्टेज के जानवर की हम पल्स मॉनिटर कर ले तो वो इम्पैल्पेबल होती है, आप पल्स पा ही नहीं पाएंगे और एकदम जानवर कॉमा में चला जाता है। सो मुख्यतः ये 3 स्टेज होती है, स्टेज 1, 2 और 3। नाउ इसके स्टेज क्लिनिकल साइन जानने के बाद में अब आती है एक प्रमुख स्टेज, दैट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी। हम पैथोलॉजी में क्या क्या ऐसे सैंपल को चेक करें जिसके माध्यम से हम ये डेफिनेटली डायग्नोसिस कर सकें कि ये इसको हाइपोकैल्सीमिया है। तो इसके लिए जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन करेंगे तो यहाँ सीरम का कैल्शियम कंसंट्रेशन देखते हैं। नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होती है कैल्शियम, सीरम कैल्शियम की, वो 8.5 टू 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। लेकिन जब इसी की वैल्यू 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया के साइन हो जाते हैं और 8 से नीचे हो जाती है तो वो सब हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में जाता है। इसी तरह इनऑर्गेनिक फॉस्फेरस का भी कंसंट्रेशन नापते हैं सीरम में तो उसका भी वैल्यू थोड़ा डिप्रेस हो जाती है नॉर्मल से। सिमिलरली सीरम मैग्नीशियम की वैल्यू है थोड़ा सा नॉर्मल से इसकी वैल्यू बढ़ गई होती है। एक यहाँ पर जब आरबीसी टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं तो हमें स्ट्रेस ल्यूकोग्राम मिलता है। स्ट्रेस ल्यूकोग्राम का मतलब जो इओसिनोफिल की कंसंट्रेशन है, जो संख्या है वो कम हो जाती है, जबकि न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है और लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। लेकिन ये स्ट्रेस ल्यूकोग्राम कोई मिल्क फीवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हम केवल स्ट्रेस ल्यूकोग्राम के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये जानवर मिल्क फीवर से ग्रसित है, ये और भी कंडीशन है वहां पर भी मिल जाता है, इसलिए स्ट्रेस ल्यूकोग्राम उतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। एक सेकेंडरी इंडिकेटर होता है, दैट इज एंजाइम्स दो होते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज और एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। ये दोनों एंजाइम सेकेंडरी इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। जब लैटरल रिकम्बेंसी में हमारा जानवर चला जाता है तो उसमें मसल डिजेनरेशन होता है और जब मसल्स का डिजेनरेशन होता है तो ये दो एंजाइम्स का रिलीज होता है, सीके और एएसटी, दैट इज क्रिएटिनिन काइनेज और एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। तो जब इन मसल्स एंजाइम की कंसंट्रेशन बड़ी होती है तो एक टेंटेटिवली सस्पेक्ट किया जा सकता है कि ये एनिमल मे बी टुवर्ड्स द हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन। सो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इन और ये मसल एंजाइम्स के की फाइंडिंग्स और क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को आपस में इनका स्टडी करके हम इस टेंटेटिवली या हम इस कंफर्मेटरी डायग्नोसिस से पहुंचते हैं कि पर्टिकुलर एनिमल मिल्क फीवर से सफर कर रहा है। नाउ ये पिक्टोरियल डिपिक्टेशन से कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स का, लाइक मसल वीकनेस, ट्रिमर, मसल वीकनेस एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द मसल। सेकेंड फिगर शो कर रहा है ट्रिमर्स है आईज और मजल्स में। थर्ड फिगर दिखा रहा है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में और जो फोर्थ फिगर है वो ये शो कर रहा है फोर्थ फिगर
कि कैसे यस शेप वो अपना पोस्चर ले लेता है और अपने फ्लैंक की तरफ देखता रहता है। फिफ्थ फिगर है कि इस स्किन और एक्सट्रीमिटीज जो होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। फिफ्थ फिगर हो गया अनकॉन्शियसनेस। सिक्स फिगर अनकॉन्शियसनेस और ड्राउजी कंडीशन। सेवेंथ में है आई की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो गई है और प्यूपिल डायलेटेड हो गया है। और ड्राई मजल, लास्ट वन इज ड्राई मजल। सो दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद मिल्क फीवर के साथ होते हैं और उनका ये पिक्टोरियल डिपिक्टेशन है। नाउ इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बहुत पूर्ण है कि हमें डिफरेंशियली डायग्नोस करना पड़ता है कि ये मिल्क फीवर है या किसी और समस्या की वजह से है। लाइक मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल डिजीज और टॉक्सीमिया के साथ हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ विद हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया। जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया नाम से सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर लो ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाएगा। हाइपोकैलीमिया यहाँ पर लो ब्लड पोटेशियम लेवल हो जाएगा। और हाइपोफॉस्फेटेमिया यानी कि यहाँ पर लो ब्लड फास्फोरस लेवल हो जाएगा। सो लो कैल्शियम लेवल हो जाएगा, यहाँ एस शेप का पॉस्चर हो जाएगा। जब पोटेशियम लेवल लो हो जाएगा तो रिकम्बेंट एनिमल विद एबनॉर्मल नेक पॉस्चर हो जाता है। और जब फास्फोरस लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पेग एग लाइक सिंड्रोम हो जाते हैं। यानी पेग का मतलब जो खूंटी होती है उसके तरह के, एकदम खूंटी की तरह उसके पैर हो जाते हैं, तो वहां पर पेग लेग सिंड्रोम हो जाता है। लो कैल्शियम के लेवल में इनएबिलिटी टू यूरिनेट हो जाएगा। जबकि जो पोटेशियम का लेवल जब कम हो जाएगा तो स्लाइटली डार्कर और अपियरिंग टी कलर का, ब्राउनिश कलर का यूरिन होगा। और यहाँ पर जो फास्फोरस का लेवल कम होगा वहां पर जो यूरिन होगा वो डार्क रेड कलर का यूरिन हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसिस फॉर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज थेरापेटिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अभी हमने जाना क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या उसके फैक्टर से होने के लिए, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल साइंस। अब हम आते हैं ये जानते हैं कि इसका हम थेरापेटिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम उसको अपनाएं तो हम सक्सेसफुली इसका थेरापेटिक मैनेजमेंट कर सकें। सो immediate treatment provided to affected cow as soon as the clinical signs are obvious। एक हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट के लिए एक गोल्डन रूल है जो बहुत पुराने समय से आ रहा है कि जैसे ही हमें क्लिनिकल साइंस पता चले या डायग्नोसिस हो जाए हम तत्काल उसकी हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट को हाइपरकैल्सीमिया में बदल दें। और ये जो हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट हाइपरकैल्सीमिया में कैसे बदली जाएगी, उसके लिए हम कैल्शियम आयन उसके अंदर इन्फ्यूज कर दें। ये गोल्डन रूल पुराने समय से चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। उसमें यह है कि हम ये जो ट्रीटमेंट है उसको जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करें। अगर हमारा एनिमल स्टैंडिंग कंडीशन में है और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो उसका ग्रेटर चांस है कि रिकवरी हो जाएगी और एनिमल हमारा सक्सेसफुली, हम एनिमल को सही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 4 घंटे से ज्यादा की रिकम्बेंसी हो गई और ट्रीटमेंट देने में डिले हो गया तो उतना ही उसकी प्रोग्नोसिस यानी सही होने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ये लेटरल रिकम्बेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जानवर के सही होने की संभावना कम हो जाएगी और जानवर लास्ट में या तो डाउनस काउ में चला जाएगा या फिर उसका डेथ होने की संभावना, प्रबल संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जैसे पता चले वैसे ट्रीटमेंट हमें इसका करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि हम बाहर से आईवी फ्लूइड के माध्यम से, इन्फ्यूजन के माध्यम से कैल्शियम का सप्लीमेंट करते हैं। आजकल कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए कई कैल्शियम प्रिपरेशंस आते हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट हो गया और लेस कॉमनली कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का जो प्रयोग है वो आईवी इन्फ्यूजन के लिए तो बहुत ही कम किया जाता है। इसका मेजर यूज किया जाता है ओरल देने में, कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा यूज किया जाता है।
नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी एनिमल को 10 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक अगर कैल्शियम उसको देते हैं तो नॉर्मली वो हमारा हाइपोकैल्सीमिया से रिकवर कर जाता है। तो सपोज मोस्ट काउज विद मिल्क फीवर कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विद कैल्शियम साल्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग 8 to 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सपोज किया कि हमारे पास एक एडल्ट एनिमल है और उसका हमें ट्रीटमेंट करना है हाइपोकैल्सीमिया से। तो उसके लिए हम अगर 500 ml 23% कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का सोल्यूशन उसे 500 ml हम आईवी चढ़ाते हैं तो हम उसको लगभग लगभग 10.7 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार 10.7 ग्राम कैल्शियम अगर हम देंगे तो उसका जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है वो हाइपरकैल्सीमिया में बदल जाएगी। लेकिन एक बेसिक सा कैलकुलेशन, जैसे अक्सर ये आता है कि हमें कितना कैल्शियम देना है, तो उसके लिए एक बेसिक कैलकुलेशन पैरामीटर है। उसमें यह है कि अगर मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल प्रिपरेशन है, नॉर्मली 23% बोरोग्लूकोनेट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सो जो 23% बोरोग्लूकोनेट को अगर हम 100 ml चढ़ाते हैं किसी भी जानवर पे तो हमें 2.14 ग्राम एलिमेंटल कैल्शियम मिलता है। ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए डाटा है। 100 ml 23% बोरोग्लूकोनेट हम चढ़ाएंगे तो हमें 2.14 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। तो उसी अनुपात में हम कैल्शियम का कैलकुलेट करके और उसी हिसाब से हम अपने जो एनिमल सफर कर रहा है उसको चढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक प्रिपरेशन है लाइक बोरोमैक जी है, क्वाली ड्रॉप्स जी है, ये मिल्क फीवर फार्मूला है, यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है। अच्छा, इसमें केवल कैल्शियम देने मर से हमारा एनिमल जरूरी नहीं है सही हो जाए, क्योंकि जो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है उसका पैथोजेनेसिस में हमने क्या मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक फैक्टर होता है कि मैग्नीशियम आयन का भी कंसंट्रेशन अगर कम हो गया है शरीर के अंदर तो भी मिल्क फीवर होने का चांसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आयन का अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो पैराथायराइड हार्मोन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। पैराथायराइड हार्मोन अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है, विटामिन D3 का जो एक्टिव फॉर्म है वो नहीं बनेगा और इसकी वजह से कैल्शियम रिप्लेनिश नहीं होगी, यानी कैल्शियम पूल में प्रॉपर आएगी नहीं उसकी कंसंट्रेशन। सो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल है जैसे कैल्शियम है वैसे मैग्नीशियम का भी कंसंट्रेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। नाउ गाइडलाइन फॉर सेफ आईवी कैल्शियम यूज। जो भी हम कैलकुलेटेड अमाउंट किए, सपोज किया हमें 450 ml और 500 ml कैल्शियम चढ़ाना है, तो उस रिक्वायर्ड अमाउंट को हम लगभग 15 से 16 मिनट, 12 से 16 मिनट और 15 से 16 मिनट के अंदर उसका आईवी इन्फ्यूजन कर देंगे ताकि उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर जो हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन है वो तत्काल हाइपरकैल्सीमिया में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसमें एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, हम अक्सर यहाँ पर क्लिनिक्स में देखते हैं केसेस आते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया का केस हुआ रहता है, तो बाहर से जो ट्रीटमेंट हुआ रहता है बताते हैं कि एकाएक उन्होंने कैल्शियम चढ़ा दिया और जानवर तुरंत कोलैप्स कर जाता है। उसका रीजन ये है कि आप जब अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम एकाएक चढ़ा देंगे तो ये बॉडी के अंदर हार्ट में एक निगेटिव इफेक्ट देता है। कार्डियोजेनिक इफेक्ट जो होता है, निगेटिव कार्डियोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। जो हार्ट रेट होता है या हार्ट की जो बीट करने की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा जानवर है कार्डियक फेल्योर में चला जाता है और वो कोलैप्स कर जाता है। इसलिए जब भी आईवी हम कैल्शियम आयन का इन्फ्यूजन करेंगे, हम फ्रिक्वेंटली स्टेथोस्कोप से उसका एस्कल्टेशन करते रहेंगे, ये देखते रहेंगे कि हार्ट रेट प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। अगर हार्ट रेट देख रहे हैं बढ़ गई है तो तत्काल हम आईवी जो इन्फ्यूजन है उसको रोक देंगे और कुछ देर रुकेंगे। जब हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद फिर हम इन्फ्यूजन को प्रॉपरली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो हार्ट के ऊपर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसको काउंटर कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही साथ एक आईवी
एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात और ध्यान देने वाली है। अक्सर क्लिनिक्स में और अक्सर फील्ड कंडीशन में हमें ऐसे केस मिलते रहते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि अरे सर, हमने डॉक्टर साहब हमने इसको आज कैल्शियम कल चलाया था, हमारा जानवर सही हो गया, आज फिर बीमार हो गया, अब समझ नहीं, फिर लेट गया, फिर नहीं उठ रहा। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, जब हमने आईवी कैल्शियम दे दिया उसके बाद 12 घंटे के अंदर में हमें 2 बार, 12 से 24 घंटे के अंदर में हमें 2 बार उसे ओरल कैल्शियम भी देना पड़ेगा। सो एक आईवी कैल्शियम और 2 ओरल कैल्शियम का अगर हम ये प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के लिए करते हैं तो हमने भी फील्ड में यहाँ क्लिनिक्स में देखा लगभग 85 to 95% केस सक्सेसफुली हम उनको ट्रीट कर सकते हैं और उनमें रिकरेंस का चांस कम हो जाएगा। जहां तक रूट के बारे में बात करेंगे तो ये कैल्शियम जो इन्फ्यूजन है उसके लिए आईवी रूट बहुत ही प्रेफर्ड रूट है। क्यों? क्योंकि आईवी माध्यम से जो हम फ्लूइड देंगे वो तुरंत जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। वनस्पत जब हम सबकट रूट देते हैं तो सबकट से जो फ्लूइड दिया जाता है उसका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंट नहीं होता है, और हमें जब सीवियर हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन हो गए तो हमें उस बॉडी को हाइपर कैल्सीमिया में तुरंत लाना है। तो तुरंत में लाने के लिए अगर हम सबकट इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो तुरंत सबकट इन्फ्यूजन में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं। तत्काल रिजल्ट अगर लेना है तो हमें आईवी इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। दूसरी बात एक और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम आईवी जो फ्लूइड कैल्शियम का दें वो टॉक्सिमिक काउज में कभी भी आईवी कैल्शियम का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे जो टॉक्सिमिक काउज हैं अगर हम उनमें आईवी कैल्शियम दे देंगे तो उनका हार्ट रेट एकाएक बढ़ जाएगा, उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ट्रेम्बलिंग हो जाएगी और अंत में वो गाय तुरंत कोलैप्स कर जाएगी विद इन फ्यू मिनट। इसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ बताना चाह रहा था, इन्फ्यूजन में जो सबकट जब हम इन्फ्यूज देते हैं तो उसमें भी अक्सर ये एक फील्ड में भी है और अक्सर ये कंडीशन आती है, ये पूछा जाता है कि हमें सबकट कितना फ्लूइड देना और कितना आईवी फ्लूइड देना। तो इसका कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। ये अब प्रैक्टिस जो हम यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस देखी जा रही है उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि हाफ अमाउंट आईवी इन्फ्यूजन दे देते हैं और कुछ हाफ सबकट दे देते हैं। कुछ लोग 2/3 आईवी दे देते हैं और 1/3 सबकट दे देते हैं। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम लोग देख रहे हैं लगभग 2/3 आईवी दे देते हैं और 1/3 सबकट। तो हम उसके काफी रिजल्ट हमें सक्सेसफुली रिजल्ट मिल रहे हैं। सबकट जो फ्लूइड दिया जाता है उसमें क्या करते हैं कि मल्टीपल प्रिकिंग की जाती है। एक जगह प्रिक करके कुछ अमाउंट दिया गया, फिर दूसरी जगह प्रिक करके कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो उसमें भी एक क्वेश्चन होता है कि एक प्रिक पर हम कितना ml फ्लूइड वहां पर डिपॉजिट करें। तो सबकट जब हम फ्लूइड दे रहे हैं तो एक प्रिकिंग में लगभग 50 to 75 ml अमाउंट के इर्द गिर्द हम फ्लूइड इन्फ्यूज करेंगे, जो कि लगभग 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम एक जगह पर डिपॉजिट कर देगा। इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्स टू आईवी कैल्शियम बोरोग्लोट इन्फ्यूजन। अब हमने प्रॉपर डायग्नोसिस करके आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया। अब हमें कैसे पता चला गया कि ये हमारा आईवी सक्सेसफुली रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं? तो उसके कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं। जैसे अगर सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमारा जो जानवर बीमार था वो बेल्चिंग करेगा, उसका जो मजल है, जो सूखी मजल थी वहां पर मॉइस्टनेस आ जाएगी, जो हार्ट रेट एकदम डिक्रीज कर गई थी उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो बहुत तेज हार्ट रेट थी वो डिक्रीज हो जाएगी। स्वीटनिंग ऑफ मसल्स हो जाएगा, तुरंत मिक्चुरेशन हो जाएगा, वो जानवर जो हमारा पेशाब नहीं कर रहा था वो पेशाब मिक्चुरेशन है, पेशाब कर देंगे। सो ये कार्डिनल साइंस है रिस्पांस का कि हमारा जो आईवी हमने जो फ्लूइड दिया कैल्शियम बोरोग्लोट का वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। सो ये कैल्शियम इन सीवियर हाइपोकैल्सीमिया और डिहाइड्रेशन सबक्यूटेनियस ट्रीटमेंट विद कैल्शियम सॉल्यूशन इज इनएप्रोप्रिएट। ये हम पहले ही चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं, और ये भी हमने बताया कि एक जगह जब सबकट देंगे तो 50 से 75 ml देंगे, जिससे 1 से 1.5 ग्राम हमें कैल्शियम मिलेगा।
नाउ जैसे कि नेक्स्ट वन इज ओरल कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि एक आईवी इन्फ्यूजन देंगे और 12-12 घंटे 12 से 24 घंटे के अंतराल में हम दो ओरली कैल्शियम सप्लाई करेंगे, जिससे ये एक स्टैंडर्ड और एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा। तो कैल्शियम आयन का जो हम वो कर रहे हैं ओरल देंगे, उसके लिए मार्केट में बेसिकली दो टाइप के साल्ट हैं। एक कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट है, एक कैल्शियम प्रोपियोनेट का साल्ट है। दोनों साल्ट्स की अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी कमियां हैं। तो नॉर्मली जो हम आजकल फ्रिक्वेंटली जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ढेर सारे जो जेल्स आ रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड के, वो कैल्शियम क्लोराइड के ही आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू कैल्शियम प्रोपियोनेट। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड लो कॉस्ट में पड़ता है, इसकी कीमत कम पड़ेगी। कैल्शियम प्रोपियोनेट का कॉस्ट बहुत पड़ता है, और कैल्शियम क्लोराइड हमें थोड़े अमाउंट में वही प्रभाव दिखाएगा जो अधिक अमाउंट में हमें कैल्शियम प्रोपियोनेट देना पड़ेगा। दूसरा इसके साथ अच्छाई ये है कि कैल्शियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, क्योंकि वहां पर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन बनी हुई है और उसे हमें तुरंत हाइपरकैल्सीमिया में कन्वर्ट करना है। तो हमें चाहिए कि ऐसा साल्ट दें जिसका एब्जॉर्प्शन रेट तेज हो। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड के साथ एक अच्छाई ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, जबकि कैल्शियम प्रोपियोनेट में एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ एक ही खराबी है, और वो खराबी ये है कि ये मोर इंजूरियस टू टिश्यूज को मोर इंजूरियस होता है, जबकि कैल्शियम प्रोपियोनेट टिश्यूज को लेस इंजूरियस होता है। सो आजकल जो मार्केट्स में अवेलेबल ज्यादा प्रोडक्ट हैं वो कैल्शियम क्लोराइड का ही यूज करते हैं। अब आता है फेल्योर टू रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। जरूरी नहीं कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो हमेशा सक्सेसफुली हो जाए, उसके फेल्योर होने के भी चांस बराबर बने रहते हैं। क्या कारण होते हैं? उसके वेरियस कारण होते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो फेल्योर हो गया। उसका कारण ये है, या तो हमने इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डायग्नोसिस की है, और हमने उसका इनएडिक्वेट उसका ट्रीटमेंट किया है, या हम डायग्नोसिस नहीं कर पाए हैं सही। जैसे कि मैंने पहले पीछे बताया, हाइपोकैल्सेमिक सिंड्रोम हो, या कुछ और अदर हाइपोफॉस्फेटीमिया हो, हाइपोकैलीमिया की कंडीशन हो, और हम उसको कैल्शियम दे रहे हैं, तो भाई कहाँ से सही होगा? यानी हमने उसका इनकम्प्लीट डायग्नोसिस की है। या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, हमें उसको जरूरत है सही होने के लिए 10 ग्राम 15 ग्राम की कैल्शियम, और हम उसको लो डोज में केवल 5 ग्राम 6 ग्राम कैल्शियम दे रहे हैं, तो भी नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा और वहां पर ट्रीटमेंट फेल्योर हो जाएगा। दूसरा एक चीज मैंने और बताया था कि हम नॉर्मली बहुत फ्रिक्वेंटली ये यूज हो रहा है फील्ड में कि केवल आईवी इन्फ्यूजन दे देते हैं और छोड़ देते, कहते हैं तो आईवी इन्फ्यूजन दिया, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, 6 घंटे तक वो हाइपर कैल्सीमिया की स्टेट बनी रही, तब तक जानवर सही रहा। 6 घंटे के बाद तुरंत फिर वो लैटरल रिकम्बेंसी में चला गया। ओनर बोला कि फिर मेरा जानवर बीमार हो गया। तो उसको काउंटर करने के लिए जैसे पहले बताया कि 2 ओरल डोज भी हमें साथ में कैल्शियम का देना पड़ेगा। तो ये इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो भी हमारा ट्रीटमेंट फेल्योर हो जाएगा। इसके अलावा नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एनिमल फॉर कैल्शियम रिप्लेसमेंट, वो डिपेंड करता है बॉडी वेट में, मिल्क यील्ड, एज एंड डिग्री ऑफ हाइपोकैल्सीमिया में। इसके बारे में हमने चर्चा करी ली है। नाउ इन लास्ट, व्हाट आर वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स? क्या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपनाएं या कंट्रोल स्ट्रेटजीज अपनाएं ताकि हमारे जानवर को हाइपोकैल्सीमिया जैसी समस्या से गुजरना ही ना पड़े, यानी उसको मिल्क फीवर हो ही ना। तो उसके लिए है रिडक्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम अवेलेबल फॉर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो ड्राई पीरियड में हमें कैल्शियम 100 ग्राम से ज्यादा कैल्शियम उसको नहीं देना चाहिए। अगर वो हम प्रैक्टिस में करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इंडक्शन ऑफ माइल्ड एसिडोसिस। जैसे कि हमने डीसीएडी में चर्चा की थी कि हम ऐसे चारे का प्रयोग करेंगे या कुछ ऐसे आयन आते जैसे अमोनियम क्लोराइड, एक नौसादा आता है। तो जब पेरी ट्रांजिशन पीरियड में हमारा जानवर हो, हम कोई जो प्रेग्नेंट एनिमल है, तो ट्रांजिशन पीरियड में यानी 21 डेज या 3 वीक्स पहले से हम उसको लगभग 50 से 100 ग्राम 50 से 60 ग्राम अमोनियम क्लोराइड अगर हम रोज उसको 21 दिन तक देते रहें
पार्चुरेशन से 21 दिन पहले तक, तो उसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाए, एसिडोसिस हो जाएगी और हम अपने जानवर को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक बचा पाएंगे, हाइपोकैल्सीमिया में वो नहीं जाएगा, यानी उसमें मिल्क फीवर नहीं। तीसरा कंट्रोल स्ट्रेटजी है विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। विटामिन डी का जो सप्लीमेंटेशन है हम वो दो तरह से कर सकते हैं, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं या ओरल दे सकते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में अगर हमें कैल्शियम विटामिन डी देना है तो हम क्या करते हैं कि ब्याने से 1 सप्ताह पहले हम उसको 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट का एक डोज विटामिन डी का इंजेक्शन लगाते हैं। इसकी जो डोज रेट होती है वो होती है 1 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट पर 45 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से निकालते हैं। तो 1 सप्ताह पहले 10 इंटरनेशनल यूनिट का हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश हम इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं तो हम इसकी टैबलेट भी दे सकते हैं, और टैबलेट हमें जब उसका काविंग की डेट एक्सपेक्टेशन हो कि भाई इस तारीख को या इस समय पे ये ब्याने वाली है, तो उससे 5 दिन पहले से, मतलब लास्ट के 5 डेज हमें उसको कैल्शियम का वो देना है, 10-10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से उसको कैल्शियम देना है। चौथा जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है वो ओरल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अराउंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन जिस समय हमारा जानवर पार्चुरेट कर रहा हो उस समय हम कैल्शियम का इसको सप्लीमेंटेशन ओरल दे सकते हैं। इसके लिए भी बताया जाता है, जो एक आजकल रिसेंटली फॉलो किया जाता है, 3 डोज दी जाती है, एक ब्याने से 12 घंटे पहले, एक ब्याने के समय और एक ब्याने के 12 घंटे बाद। 3 कैल्शियम के डोज ओरल उसको देंगे तो हम जानवर को अपने बचा सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की तरफ जाने से। फिफ्थ जो अप्रोच है वो है पैरेंटरल कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के समय या तो आईवी इन्फ्यूजन हम कैल्शियम का कर देंगे, तो ये ट्रीटमेंट का नहीं है, ये अप्रोच है जिस समय गाय ब्याए उस समय हम पैरेंटरली कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर देंगे तो हाइपोकैल्सीमिया से हम अपने जानवर को बचा सकते हैं। और पुराने समय में जो लास्ट है पार्शियल मिल्किंग, एक ओल्डर टाइम में एक ये भी टेक्निक कंट्रोल के लिए यूज की जाती थी कि जो लैक्टेटिंग हाई लैक्टेटिंग था, अगर सपोज करिए जो जानवर 10 किलो दे रहा था तो उससे हम 7 किलो या 6 किलो ही दूध लेते थे, जिससे कम कैल्शियम का ड्रेन होगा और उसको हाइपोकैल्सीमिया की समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये थी कि पार्शियल मिल्किंग की वजह से उसके अडर में मिल्क रुकेगा और वहां पर मेस्टाइटिस होने के चांस हो जाते हैं। सो ये ओल्ड समय में होता था, आजकल इसको नॉर्मली नहीं यूज में किया जाता है। सो दीज आर द रिडक्शन जिसके